حضرت قبلہ جیل میں تھے تو میں کیا کرا، یہ حضرت قبلہ 2 کمرے بنے تھے، سنیں، ایک کمرے میں اندر جانا، کپڑے بدلنا، پھر یہ کمرے میں یہاں دروازہ تھا، دروازے کے اندر جانے کے بعد یہ پانی نہانے کی جگہ، یہاں پانی نہانے کا حوض 2 بائی 3 فٹ کا تھا، اس میں نل لگا تھا، یہاں ٹھہر کے پانی نہاتے تھے، یہ رستہ یہاں تھا، یہاں ہنڈا گاڑے تھے حضرت قبلہ، چولہے رکھ کے بگونا گاڑے تھے، اس میں لکڑا لگے تو اوپر نکلتا تھا ہوا، دھواں، سنیں، تو اس وقت کیا ہوا تھا، دیوار میں سے پورے مٹی جھڑ گئی تھی جی۔ صبح صبح میں کیا کرا، مٹی کھود کے پیروں سے کچڑ، تھاپی اوپی کیا بھی نہیں تھی، وہ تھوپتے بیٹھ گیا، وہ سوراخا اتنی تو ہاتھ جاتا تھا اینٹوں کے بیچ میں جی، ایک طرف سے دیوار کو تھوپتے آیا تو بڑے اماں ادھر سے آئے، چلے آگے کھانا کھانے نہیں جاتا کا، ناشتہ کو میں جاتا ہوں، ہمارے گھر میں کیا بھی پکتا نہیں تھا، اس نے بولا نہیں، میں پھر 1 گھنٹے کے بعد پھر آئے، ابھی نہیں گیا کیا ناشتہ کو، نہیں گیا، ویسا میں تھوپتے بیٹھا تھا، چلے جا کے ہاتھ پہ 2 پراٹھے، خیمہ اور میتھی کی بھاجی تھے، میں ایسا دیوار تھوپتے بیٹھا تھا تو وہ کھول گئے، ایک نوالا توڑ کے میرے کو کھلاتے گئے، 2 پراٹھے کھلائے ٹھہر کے، میرے ویسے کچڑ گیا تھا، ماشاء اللہ، سبحان اللہ۔ اس لیے اللہ تعالیٰ نورانی اور جسمانی کیفیت ایسی دیا آپ کی بچوں کو۔ ہاں مول صاحب 2-3 وقت بولے یوسف لطیف میرے بیٹے ہیں بول کو، ماشاء اللہ۔ یوسف آپ کے بڑے بھائی، چھوٹا ہے میرے سے 2 سال کا، عبداللہ زاہد میں رہتا ہوں، عبداللہ زاہد سب بڑے ہیں، عبداللہ زاہد سب بڑے تھے، انہیں یہ میں پڑھا، انہیں عثمانی یونیورسٹی سے کہاں ہے انہوں مراد نگر میں، وہ بہت دن سے خاندانی اختلافات کی وجہ سے کسی کے گھر کو آنا جانا بند کر دیا انہیں، اچھا پیسے بنتا سمجھتا کیا یہ ہماری بیٹی، میری بیٹی، ان کا نام سیدہ تاجدار تحریم، مجھے کا نام رکھے، بڑی اماں کا نام عبدالسمی تھا جی، عبدالسمی، جی ہاں، سنے، جی ہاں، تو حضرت قبلہ منا بول کے بلاتے تھے، منا بیگم، جی ہاں، بیگم نہیں منا بول کے بلاتے تھے جی۔ ایک وقت کیا ہوا، حضرت قبلہ اماں کے سامنے ٹھہرے تھے، پیران ماں تو کیا بولے گا، جی منا، جب میں کھانا کھا کے باہر نکلتا ہوں، اگر کوئی میرے پوچھے کیا کھایا بولے تو میرے کو یاد نہیں رہتا، سبحان اللہ، کھانے پہ دل نہیں تھا، حضرت قبلہ نشانات کے نشانات ہیں نا پرانوں میں، دیندار قلب بخشش کے 3 اہم نشانیاں ہیں، کھانے پہ دل نہ پہلی رہے گا، نشانی کیا، وہ کبھی سر کے بال نہیں منڈائے گا، بچپن سے بال رکھے تھے، سنیں، دوسرا کبھی پلک نہیں مارے گا، بولے تو پلک کب مارتا آدمی، کوئی بھی ڈنڈا اٹھایا، لکڑی اٹھایا تو کسی سے نہیں ڈریں گے، اور تیسری بات حضرت قبلہ کے متعلق کیا لکھی ہوئی ہے، کھانے پہ ان کا دل نہیں رہے گا، سبحان اللہ، تو روزانہ میں دسترخوان نکالتا تھا، نام تھا حضرت قبلہ بیٹھنا، جنے کس کو تو نوراللہ میں آ رہے نے کہا کھانے آؤ، تو حضرت قبلہ کیا کرتے تھے، کھانا ڈال دیتے تھے، اس کے ساتھ سالن پورا ملاتے تھے، اتنے بڑے بڑے نوالے لے چھوٹے نوالے نہیں لیتے، دیکھے دیکھے تک کھانا ختم ہو جاتا، تو کھانے پہ دل نہیں رہے۔ حاجرہ اماں جان کا بھی واقعہ ہے نا، حاجرہ اماں جان کا بھی ایک واقعہ ہے نا، کھانے کے ٹائم کا، حاجرہ اماں جان کا بھی ایک واقعہ ہے، بول رہے کھانے کے ٹائم حضرت کا، اماں جان کا کھانے کے تعلق، کھانے کے متعلق، آئے کھا لیے چلے بھی گئے، حضرت قبلہ دارزت آ کے بیٹھ کے کھائے، جب ایک نوالا لیتے بولے ارے اماں اس میں نمک کس نے ڈالے نا، بولے تو حضرت قبلہ آئے کھائے بھی چلے بھی گئے، نہیں معلوم میرے کو، جو چیز میرے کو نہیں معلوم نا میں بولتا نہیں، نہیں یہ اور یہ ہے نا، نہیں یہ حضرت قبلہ جو ہے نا، جیل سے پہلے سے وہ اماں کے گھر میں جانے کا رک گئے تھے، اور جیل سے آنے کے بعد بھی وہاں نہیں گئے، یہی اماں کے پاس رہے، جی،
हम रात दिन यही देखते थे। जी तखत पे बैठना हजरत क़िबला ऐसा, ये खिड़की है इधर कमरे को खिड़की की तरफ पीट करके बैठते थे तखत पे, सुने। और बड़ी अम्मा उधर बैठते थे। हमारी वालिदा रोज़ हम लोग किराए से थे तैयबा के घर पे, अब दरगाह है नहीं उनकी, जी हाँ वहाँ से निकल के जरानी मस्जिद में से जाके हजरत के कमरे में पलंग के पास नीचे बैठते थे हमारे अम्मा, बातें सुनते। हमारा छोटा भाई अब्दुल रऊफ है उसका नाम, उन्हें अरबस्तान में है, अच्छा 45 साल से ज़्यादा। तो उसे गोद में ले खिलाए हजरत क़िबला, बस उतना ही। माशाल्लाह। ये क्या है, हमारे भाईजान जो है ना, वो दालान था, ये 2 कमरों के बाद दालान वो तोड़ के बने ना, तो दालान में वो फोटो लगाए थे, शेर लिख कर लगाए थे, भाईजान निगाह बरख नहीं, चेहरा आफ्ताब नहीं, वो आदमी है मगर देखने की ताब नहीं। मुल हजरत क़िबला दर्द देते वक्त कोई भी ऐसा चेहरे को ऐसा सीधा नहीं देखते थे। हजरत क़िबला इधर दर्द देते वक्त इधर के लोग देखना, सुने, इधर पलट को दर्द देते वक्त इधर के लोग देखते थे। ऐसे सादी आहिस्ता बात करते थे, फिर भी रोब ऐसा था। दर्द देते देते कब तक वो लाइट की रोशनी पड़ी तो ये इतना चांद के वजह चमक आती थी। माशाल्लाह। साहब वो जो चांद था, चांद की जो चमक आती थी, सफेद चांद था ना वो? नहीं काला चांद था ना? वो थोड़ी झलक आती थी उसे, झलक आती प्योर थी। चांद वो न दिखता था। अरे झलक आती थी। हाँ, ऐसा रोशन चेहरा जो है ना, जी हाँ थोड़ी बातें करते करते वो कुछ रोशनी पड़ी कहते हुए तो जर्रा देखने वालों को महसूस होता था उन्हें, तो ऐसा निशान बना हुआ नहीं था। नहीं निशान तो ये हाँ पीठ पे का, था। हाथ का। आप देखे नहीं मुसाब पीठ का निशान? हाँ, देखे नहीं आप? मैं देखा नहीं। हाँ वह हजरत क़िबला क्या करते थे, लुंगी नहीं पहनते थे, जी पानी नहाने जाते वक्त ऐसा फुल ड्रेस से जाना, अंदर जाके नहा के करके कपड़े बदल को फिर ड्रेस से आते थे ये कमरे में। तो ये वक्त हजरत क़िबला बैठ के ऐसा कुर्ता उतारे थे, जुब्बा। फिर जापा मेरे क्या बोले, देख हजरत क़िबला कपड़े बदल रहे, देख दरवाजे के सामने से वो मोर नबूवत देख, बोले। तो हजरत क़िबला के लक्के कमरा है, वो उसके दरवाजे के सामने से ये देखा, सुभान अल्लाह। हाँ दरवाजे में से देखा। हजरत क़िबला बैठ के कुर्ता उतार के दूसरा पहने। उसके अलावा बशारतों में मेरे को बताए, ये बताइए। मेरे निशाना देखो बा, हाँ इतना बड़ा हो गया हजरत क़िबला का हाथ, ये हाथ इतना बड़ा होगा, पूरे निशानात देखे हैं। वो ऐसा बोल। फिर उसके बाद क्या बोले, अच्छा ऊंचे तख्त पे बैठे थे, अगर कोई मेरे पीठ का निशान देखना दिखाना चाहे तो वो भी देखता। हजरत मैं देखता हूँ, हजरत पर चढ़ के जाको पीठ का निशान देखा ख्वाब में। ये जिंदगी के बात अलग, हाँ ख्वाबों के बात अलग। जी हाँ अल्लाह ताला का बहुत फजल है मुझसे, मेरे से पहले से। माशाल्लाह। कब भी मैं 100 वक्त देखा हूँ मैं हजरत क़िबला को ख्वाबों में। वो यादिते रखता मैं। इतनी बड़ी बात है, एक बार देखने लोग हजरत क़िबला जब से अंजुमन में हमें ना, जब से ख्वाबों में आते मेरे को, जी पहले भी बाद में भी। सच्ची मोहब्बत करे, हजरत क़िबला की खिदमत 15 करे। दिन पहले। हाँ आप में आए थे? हाँ, अच्छा बड़े अम्मा हजरत वो सब चलते रहता, क्या करते। तुम्हारे अंदर जब सलाहियत होती जी। तुम बात करना मेरे को सब हजरत क़िबला से। छोटे छोटे हिदायत देते थे मेरे को। जी वो खबरें सुनते बैठता था नहीं, जी तो फिर गाना लगा तो गाना ने तो फिल्म चालू होती थी, जी देखे तो सिनेमा नहीं देखना बाबा ले हजरत हो गया।
मैं कितने साल से टीवी नहीं देखा मालूम, बरसा हो गए 8-10 साल हुआ, खबरें भी नहीं सुनता, टीवी भी नहीं देखता, वो सीरियल भी नहीं देखता। इसलिए कि आपका हाफिजा बहुत तेज है। आपका हाफिजा जो इतना तेज है ना, साइंटिस्ट क्या बोले, डॉक्टर क्या बोले, जो लोग ज्यादा टीवी देखते हैं उनका हाफिजा कमजोर हो जाता। हाँ वो तो है, ज्यादा देखने से आंख की रोशनी भी कमजोर आँख होती पे है, भी असर पड़ता। हाफिजा भी कम हो जाता कहते हैं। हाँ हाँ हाँ, जी हाँ, आप जो देखना छोड़े ना, हजरत क़िबला आलम के वाकयात मिनान आप सुनाते हमारे को। पहले फिल्मा भी नहीं देखते थे हम लोग। हाँ हजरत क़िबला जब इब्तिदा में जेल में थे ना, जी हाँ, जब भाई सिनेमा का बोर्ड देखता क्या तू, वो पहले बड़े बड़े बोर्ड के ऊपर टाकिस का नाम और फिल्म का नाम रहता था, पोस्टर लगाते थे, वो तक नहीं देखते थे हम। खैर हमारी कैसी भी गुजर गई, चले अब आप लोग हजरत क़िबला के अमल को अपने अमल से जाहिर करना। जी बेशक। हजरत क़िबला का उठना बैठना, चिल्लर पर दर्रा नहीं आना आदमी में। जी हाँ, सुने माल पूरे दस्तरखान पे 50 आदमी बैठे, सुने सबसे आखिर में नंबर आया आपको, सुने सबके साथ खाते बैठना नहीं, सब उठे तो जी हाँ, क्या लगा उठ जाना। सबके नजर में आता ही नहीं, बहुत देर तक खाता समझते। हाँ, नहीं खाए तो नहीं खाए, क्या होने वाला है। थोड़ा खा के उठ और ये जाना। मैं इतना एहतियात करा तो परसों सालन लगा दो इतना सालन नहीं लगना बोल के हजरत क़िबला ये लंबा रखे। यूं यूं नहीं जाना हाथ बोल के। हाँ, हाथ बढ़ाना नहीं, हाँ, जो चीज सामने है खा लेना। बढ़ाने की जरूरत ही नहीं रहती। कुछ चीज दूर रहे तो कितनी बारीकी है देखो। दूसरे दिए तो खाना नहीं तो यूं चलाना। लिबास में ये जुबे ये इतने बड़े बड़े जो रखते ना, वही देखो। आगे बढ़ के लिए तो कांड भी हाँ, ये लगता केवल के ये सालन लगता है। कितनी वो बारीकी है अपन। मैं खुद एहतियात करा तो भी लगा दो, इतना जर्रा लगा मैं खुद ख्याल रखता हूँ बहुत। अब्बा बोले ना जुम्मे में, अब आम आदमी से ज्यादा ऑन ड्यूटी पे ज्यादा इफेक्ट पड़ता। ये क्लफ का जब लगाते नहीं क्लचेस यहाँ पे बटना लगाए तो अरे कितना अच्छा है, ये सहूलत है, कुछ भी चीज लेने करने आसानी होती, बल्कि अंग्रेज बोला कहते तो अपन उसका उल्टा करना ना तो बोल ये के। रूहानी लेना ना साहब, जी मन, आपको बहुत दिन तक बहुत सारी चीजें नहीं खुलते। सुने जब आपकी एज 40 साल हो जाती सुने जब जरा जरा चलता। हाँ, क्यों? सुना मैं। जी हाँ, रूहानियत की जवानी 40 साल के बाद। बात शुरू होती। अल्लाह ताला किसी नबी को 40 साल से पहले नबी नहीं बनाया, सुने तो रूहानियत की जवानी 40 साल में आती। जी हाँ, जब तक इब्तदाई जिंदगी सब नेकाम जैसा हुजूर की जिंदगी थी। जी हाँ, सुने जब 40 साल की उम्र हुई तो पहाड़ पे चल के बोले, सुने ऐ लोगों, अगर मैं ये बयान करूं कि पहाड़ के पीछे एक लश्कर है जो तुम पर हमला करना चाहता है, क्या तुम मेरी बात को सच समझेंगे? सब लोग क्या बोले, बिल्कुल सही समझते, क्यों कि हम जिंदगी में कभी आपसे झूठ नहीं सुने। सुने तो वो जिंदगी नमूना रहती। नमूना रहती। तो अपना ये कैरेक्टर 40 साल तक प्रैक्टिकल संभाल के चलाना, समझा। हजरत क़िबला की तहज्जुद की एक नमाज खजा नहीं हुई, जी हाँ, समझा। तो कोशिश हम नहीं कर सकते, मगर कोशिश करना। हजरत क़िबला बैयत लेते वक्त क्या करते थे मालूम? मैं आज हजरत मौलाना सिद्दीक़ दीनदार चंद बख्शेश्वर साहब क़िबला के हाथ पर अपने गुनाहों से तौबा करके बैयत करता हूँ और इस बात का इकरार करता हूँ कि हत्तल इम्कान कुरान करीम के अहकाम की पाबंदी करूँगा और हर वक्त इस्लाम के फैलाने के लिए जान माल से तैयार रहूँगा। इतना लेने के बाद हजरत क़िबला इन्नल्लाह हश्तरा मिनल मुमिनीन ये आयत पढ़ के दुआ करते थे। तो इकरार में हत्तल इम्कान कोशिश करना, सुने, क्योंकि हर इंसान के साथ एक शैतान लगा हुआ है। तो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को पूछे, हुजूर आपके पास भी शैतान है क्या? बोले तो अल्लाह ताला के फजल से मेरा शैतान मुसलमान हुआ। बोले अल्लाह ताला उसे मुसलमान करके लगाया मेरे पास। सुने कोई जर्री हरकत हुजूर की जिंदगी की
सुने अल्लाह और रसूल की मर्जी के खिलाफ नहीं गुजरी। उठना बैठना नमाज पढ़ना रोना, वो नमाज खजा हुई तो भी वो सिखाने के वास्ते खजा करे ऐसा। तब दरस उम्मत को दरस देने तो के लिए आप हर अमल वासे तहज्जुद पढ़ते वक्त लंबे सिजदे करना, सुने जल्दी मुंडी नहीं उठाना समझा। सुबहाना रब्बियल आला बहुत देर तक और सुबहाना रब्बियल अज़ीम। हज़रत क़िबला लिखे ना ख़ियाम में जो खूबियाँ पैदा होते वो जामिउल बहरैन में जी उरूजी कैफियत नुज़ूली कैफियत दोनों भी लिखे। ख़ियाम में सही नमाज पढ़े उसके अंदर ये चीज़ें पैदा होते हैं, और नुज़ूली कैफियत भी लिखे उसके बाजू। तो वो चीज़ें ख़ियाम में जो अपने को अंदर पैदा कर लेना, रुकू भी जल्दी नहीं करना, बिना से करना। सुने नमाज पढ़ते चुसवाते अब हमारा क्या है, क्या बोलो अब समझा। सब अल्लाह के वास्ते कर रहे हैं, हड़ाहुड़ी कहीं को करना, आराम से करना। बस 10 मिनट इधर तिल जान दे उधर तिल जान दे। एक वक्त क्या हुआ, यहाँ देगा तो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम 200 आदमियों को लेके गज़वे गए थे। वो गज़वे से वहाँ गए तो लोगों को मालूम हुआ मुसलमान हमला करने आ रहे हैं, सब पहाड़ों में छुप गए, कोई भी नहीं था, गुम खाली हो गया। तो एक औरत कहाँ की थी, उसको पकड़ को ला लिए, सुने ला लिए। तो वापस आते वक्त शाम हो गई। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बोले आज ये पहाड़ के दामन में हम डेरे मार के रात गुजारेंगे, सुबह में रवाना होंगे। अच्छी बात है। लोग कोई डेरे मारने लगे, कोई पकाने लगा, वो सब अपने काम में लगे। तो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आज रात पहरा कौन देता? तो उस वक्त सुने आमिर बिन सईद सुने और एक अरफात, 2 साहबी थे। उन्होंने बोले हजरत आज रात हम पहरा देते। अच्छी बात है। उनको जिम्मेदारी दे के हुजूर आराम से बैठे। तो उन्होंने क्या करे मालूम, पहाड़ के ऊपर एक साफ पत्थर था, वहाँ जाके बैठ गए, पूरा इलाका नजर आए वैसा। तो अरफात को क्या बोले मालूम, अरफात तुम सो जाओ, सुने पहले मैं पहरा देता हूँ, उसके बाद तुम्हारे को उठाता हूँ। अच्छी बात है। तो उन्होंने क्या करे मालूम, कुरान करीम से बहुत दिलचस्पी से पढ़ते थे। उन्होंने मदीने के अंसार थे। तो नमाज को सूरह कहफ पढ़ना शुरू करे, रकात बंद को सुने सूरह कहफ पढ़ना शुरू करे। तो जिस औरत को मुसलमान पकड़ को लेते ना, उसका शोहर जब गया तो मालूम हुआ उसकी बीवी को मुसलमान ले गए, उन्हें तीर का माल लेके आया। आज देखा तो क्या दूर 2 मुसलमान है, एक सोया हुआ है और इन्होंने आमिर सईद नमाज पढ़ रहे। उन्हें क्या करा, तीर का मान निकाल के तीर से मार दिया इनको। मार दिया तो नमाज पढ़ते वक्त क्या करे, ऐसा तीर निकाल को खींचे फेंक दिए, नमाज चालू रखे। फिर उन्हें दूसरी तीर निकाला, वो भी मारा, पीठ में धंस गई, उसको भी नहीं खींच के फेंक दिए। फिर तीसरी तीर निकाला, फिर तीसरी भी तीर मारे, उसको भी निकाल को फेंक दिए। उसके बाद नमाज पूरी करके अरफात को उठाए, अरफात जरा तुम उठो, मेरा खून बहुत चलेगा। तो उन्होंने क्या बोले मालूम, जब भी पहले कहीं को नहीं उठा मेरे को, नहीं मैं कुरान करीम पढ़ रहा था, उसमें बहुत मजा आ रहा था मेरे को। सुने उसको रुकाना नहीं चाहा मस्जिद से लेको, वो पूरा कुरान सूरह का पूरा पढ़ने के बाद अब उठा रहा हूँ। असहाब रसूल की एक एक हरकत में कैसा हमारे वास्ते सबक रहता है। बेशक कल आएंगे। हाँ जी हाँ चलते। एक दिन में 6 सबक आ गए देखो तुम्हारे, 3-4 दिन में हो जाती। फिर मगर आप है नहीं ये बगैर देखेंगे लिखने सीखना। एक वक्त लिखो, 2 वक्त लिखो, 4 वक्त लिखो। आप आज तो थोड़ी कोशिश करें। सुने बिल्कुल प्रैक्टिस करो, दिन में करो नहीं तो यही करो। बिल्कुल।
अभी बहुत सीखने का है आपको, समझा। कुरान करीम के सर्फ व नहू सीखने का है। सर्फ व नहू अहम चीज़ है वो, के बगैर बुनियादी लैंग्वेज आप अलग इतने ज़माने तक रहना, तमीज़ करना, ये औरत के खिताब 6 साल में 6 साल रहा नहीं है अरबी, नहीं आता वो अलग चीज़ है। अब माहौल नहीं मिला। माहौल के हद तक 2-4 जो जरूरत की बात कहते हैं, सुने जरूरत नहीं सो बात कहीं कहेंगे, समझा। मुख्तदिर अच्छा, कलामुल्लाह में हर किस्म की चीज़ है। जी हाँ। मुख्तदिर अच्छा सीखा, लेकिन अच्छी फ्लुएंसी है उसको अरबी में।